Hare Krishna. Talks in Budapest. Shivram Swami invited Gaur Govind Maharaj to come to Hungary to attend the Rath Yatra festival in Budapest. In August of 1995, he arrived there, accompanied by his servant Janeshwar Das. Although most of the devotees in Hungary had not heard of Gaur Govind Swami before, Shivram Maharaj and Bhakti Bring Govind Maharaj personally went to greet him at the airport. Shivran Swami arranged for nice accommodation for his guests and he, along with Bhakti Bring Govind Swami and Balbhadra Das, came to see Gaur Govind Maharaj for some private talks. Shivran Swami, when Gaur Govind Maharaj came to Hungary in 1995, we had some nice discussions. I translated for his classes because he didn't want women translators, and all the translators were women at that time. Govind Maharaj and I had some very personal talks with him. Nothing that we normally speak about in public. We were both convinced and happy that one of our god brothers was apparently a realized devotee who was relishing the mellows of Krishna Katha. We were very inspired by him. B.V. Kusum Shraman Swami Balbhadra Das. Gaur Govind Maharaj asked if we had any question, to which we replied, no, we just want to hear from you. So Maharaj began to tell a Radha Krishna Leela. He would often refer to his notebooks for details in the story he was relating. This to me was very nice, humble. He was not trying to put on any show of knowing everything, but also wanted to be exact during the story, which at times broke into discussions. Maharaj spoke about Shiksha, Diksha, and Prem. He was very positive in his advice on how one must attain Prem. He said, if we really want to attain Prem, we must let nothing stop us. Nothing at all. Prem is the goal. Whatever stops us is Maya, and that is our own Maya. He also mentioned that when you find someone who helps you attain that Prem, you don't talk about it with others. वेरी गुड। यहाँ पर ये हम पहले देख लें कि महाराज शिवराम स्वामी महाराज गौर गोविंद महाराज को इनवाइट करते रथ यात्रा के लिए बुडापेस्ट में। फिर दे हैड नॉर्मल टॉक विद महाराज और उनमें से महाराज को रियलाइज होता है कि ही इज़ अ वेरी रियलाइज्ड सोल। गौर गोविंद महाराज वॉज अ वेरी रियलाइज्ड सोल, सिद्ध आत्मा, सिद्ध देव जिसको कहते हैं। देन यहाँ पर भक्ति वेदांत कुसुम सरमन स्वामी महाराज बलभद्र दास जो पहले ब्रह्मचारी में थे वो शेयर कर रहे हैं। Gaurav Maharaj asked if any question, to which replied no and just want to hear from you. So Maharaj began to tell Radha Krishna Leela. He would often refer notebooks. महाराज की पाइल ऑफ बुक्स रहती थी जिसमें महाराज नोट्स लिखते थे। महाराज लेक्चर देने से पहले नोट्स ढेर सारे प्रिपेयर करते थे। He was not trying to put any show in knowing everything, but also wanted to be exact. During the story, which times broke into discussion, Maharaj spoke about section and prem. He was very positive in his advice. Now, how one must attain prem. अरे बोल, यहाँ पर लाइन सिग्निफिकेंट है, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। महाराज से कह रहे हैं हाउ he was very positive in this advice how one must attain prema. He said if we really want prema, if we really want to attain prema, we must let nothing go stop us. अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वांट। अगर हमें प्रेम चाहिए, कौन सा प्रेम चाहिए? इसके लिए साथिशा प्रभु एक जब टॉक में ही बता रहे थे, जब टॉक में प्रभु जी शेयर कर रहे थे कि ये जो होता है ना कि प्रेम, ये भी एक तरीके से कहिए, प्रभु एक्चुअली प्रेम के लिए नहीं बोल रहे थे, वांट जो वांट है एक्चुअली, ये वांट के लिए प्रभु नहीं बता रहे थे, प्रभु विल के लिए बता रहे थे कि जो भक्ति का नाम है लेक्चर्स अटेंड जब जपा करते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एक मिनट रुकिएगा। तो पेज नंबर हरे कृष्णा। प्रभु लाइन जो अंडरलाइन है वो आप बोल दो।
अरे बोला, सॉरी, क्षमा करिएगा। तो राधेश्याम प्रभु बता रहे थे जो वांट होता है ना, एक्चुअली प्रभु वेल के लिए बता रहे थे कि किस प्रकार के भक्त जपा करने के लिए एक्टिव होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के भक्त जपा करने आते हैं, जिनमें डिजायर होता है जप करने का। वांट जो होता है, वांट यहाँ लिखा है ना महाराज, इफ वी रियली वांट, जो हमें चाहिए। ये चाहने वाले भी तीन प्रकार के भक्त होते हैं। इमोशनल वांट वाले, इमोशनल जब करने वाले, मतलब हाँ इंस्पायर हो गए, फीलिंग इंस्पायर्ड है, मतलब हाँ थोड़ा सा रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, कृष्ण कथा डिस्कस कर रहे हैं, भक्तों से संग में रह रहे हैं। एक इस प्रकार के भक्त हो गए, जो मतलब जिनको जब करने का इंस्पिरेशन है कि मुझे जब करना है, मुझे जब करना चाहिए। एक प्रकार के भक्त ये हो गए। एक प्रकार के भक्त हो गए कंडीशनल, कंडीशनल वांटिंग जिसे कह लो। कंडीशनल भक्त, मतलब मैं जब करूंगा, लेकिन मुझे बदले में ये चाहिए। मुझे प्रेम तो चाहिए, लेकिन साथ में मतलब मैं जो चल लगेगा प्रेम के लिए करूंगा, लेकिन साथ में मुझे कंफर्ट भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, आराम भी चाहिए। तो ये कंडीशनल वांटिंग हो गए, कंडीशनल जब करने वाले भक्त हो गए। और एक हो गया एसेंशियल वांटिंग, जिनको मतलब बस चाहिए चाहिए, इवन मैं सब कुछ हार जाऊं, जस्ट लाइक मेरा भाई, मैं कुछ भी, सब कुछ, जो कुछ भी, मैं अपना सब कुछ हार जाऊं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो इस प्रकार के भक्त हैं, जिनको सिर्फ कृष्ण प्रेम ही चाहिए, जिसको सिर्फ नाम में हरि नाम प्रभु को सर्व करना है, एक इस प्रकार के भक्त होते हैं। एंड जो थर्ड टाइप के भक्त होते हैं, उन्हीं को क्या नाम है, कृष्ण प्रेम, वही उन्हीं को कृष्ण प्रेम मिल पाता है, जो सब कुछ भगवान के लिए करने को तैयार है। सभी कहते हैं, हम ही कितनी बार कहते होंगे, आई वॉन्ट कृष्ण प्रेम, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए। एक बार लेकिन अपने आप से पूछिए, हम एलिजिबल हैं कृष्ण प्रेम के लिए? महाराज कह रहे हैं, इफ वी रियली वांट टू अटेन प्रेमा। महाराज किस टाइप ऑफ प्रेम, महाराज किस प्रेम की बात कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम की। सो एक बार अपने आप से पूछिए कि हम एलिजिबल हैं कृष्ण प्रेम के लिए, मिलने के लिए। भगवान तो देने को तैयार है कृष्ण प्रेम, और कृष्ण कृष्ण प्रेम देने को तैयार है, महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने को तैयार है, हम एलिजिबल हैं। महाप्रभु ने तो अपना दोनों हाथ उठाकर दे रहे हैं। महाप्रभु क्या कहते हैं, कौन से महाप्रभु जिनका हाथ नीचे हो, अपने हाथ से प्रेम लुटा रहे हैं? धामेश्वर महाप्रभु, सच क्या कहते हैं, हाँ धामेश्वर महाप्रभु, उनका फॉर्म देखो, वो दोनों हाथ से प्रेम देने को तैयार है। हम तैयार हैं प्रेम देने के लिए। भगवान प्रेम नहीं छुपा रहे हैं। महाराज कह रहे हैं, वी वांट प्रेम, वी मस्ट लेट नथिंग इज स्टॉप अस, नथिंग एट ऑल। भगवान तो प्रेम हमें देना ही चाह रहे हैं। अगर भगवान को प्रेम ना देना होता, तो क्या वो महाप्रभु के रूप में आते हैं, गौरांग महाप्रभु, गौर कृष्ण गौर चंद्र के रूप में आते हैं? गौरंग महाप्रभु प्रूफ है दैट कृष्ण वांट टू गिव अस प्रेम। महाप्रभु का प्रणाम मंत्र क्या है? एनी ऑफ यू? सुमित प्रभु, यश प्रभु, वैभव प्रभु, महाप्रभु श्री का प्रणाम कृष्ण मंत्र क्या है? चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सादि गौर भक्तवृंद। नहीं प्रभु, ये तो वो पंचतत्व पंचतत्व प्रणाम प्रणाम मंत्र मंत्र। हो गया है। नमो महावदनाय कृष्णाय प्रेम प्रभु जी प्रदाय एक आता है। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसते नमः। हरि बोल। जी प्रभु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरति शिन्वा। नमो महावदन्याय, जो महावदन्याय महावदन्याय है, जो बहुत महावदन्याय, मतलब मोस्ट मैग्नानिमस, मोस्ट जेनरस, मोस्ट मर्सीफुल। नमो महावदन्याय, कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने को ही आए थे, अवतरित हुए थे। गौरांग महाप्रभु जी से कोई अवतार नहीं हुआ। हाँ, वृंदावन पास टाइम में क्या था, ये कृष्ण प्रेम जो था ये छुपा हुआ था, सिर्फ गोपीज और कृष्ण अलग रलिश कर रहे थे। रुक्मिणी, मतलब द्वारका में ये प्रेम अलग रलिश किया जा रहा था, मथुरा में अलग प्रेम रलिश किया रहा था। लेकिन जो प्रेम का सबसे ऊंचा तत्व है, माधुर्य रस, माधुर्य प्रेम, महाप्रभु वो देने आए थे, कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। क्यों? क्योंकि वो महावदन्य है, मोस्ट मैग्नानिमस है। एक महाराज की बुक है ना, एनलाइटमेंट ऑफ सेपरेशन, उसमें से कुछ पढ़ते हैं ये, इसमें से मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा सीखा है। एक लाइन है, पढ़ते हैं फिर आज आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं पढ़ के रीड करता हूँ। एक मिनट रुकिए। द मोस्ट बेनिफिशिएंट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड,
known as Gaura Krishna, distributed to everyone, even the lowest man. His own कॉन्फिडेंट प्रभु बुक नहीं रीड कर रहे हैं, दूसरी बुक है महाराज की, उसमें से रीड करें पहले। पहले इतना जो लाइन है, अंडरलाइन है, उसको समझते हैं। हिज ओन कॉन्फिडेंशियल ट्रेजरी, छिपा हुआ था अब तक वृंदावन में, महाप्रभु ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर ऑफ लव ऑफ हिमसेल्फ टू द होली नेम, किस रूप में? नाम के रूप में। दिस वॉज नेवर गिवन टू पीपल एनी टाइम बिफोर, आई देयरफॉर ऑफर माय रेस्पेक्ट टू लव ऑफ सेंसेस एंड टू हिम। This stream is Gupta Vittam, the hidden treasure of Golok Vrindavan, that has not been given until now. But now Gaur is distributing to everyone here in their material world, even down to the lowest untouchables, Pamaras or Chandalas. How? By chanting of Krishna name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That is not ordinary Naam. It is Prem Naam. That is the name that gives Prem. Mahaprabhu relishes this melon and distributes it. But how did he give garland of Naam Prem? And how did he garland? तो महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम देने ही आए थे। महाप्रभु महाप्रभु ने प्रेम तो सभी को दिया, आपने पढ़ा, चांडालों को भी दिया, सबसे लोएस्ट उनको भी महाप्रभु दिया। लेकिन क्वेश्चन अगेन वही आ गया, हम उतना ईगर है लेने के लिए, हम क्वालिफाइड हैं उस प्रेम को लेने के लिए, उस मर्सी, उस ब्लेसिंग्स को पाने के लिए? एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम हमारी मर्सी यहाँ क्वालिफिकेशन की नहीं, हम क्वालिफाइड हैं या नहीं है। क्वालिफिकेशन तो बहुत दूर की बात है। द प्रॉब्लम इज उस प्रेम को जो चाहिए, उसको चाहने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, जो हमें छोड़नी है, उस प्रेम को चाहने के लिए हमें जो करना है वो हम कर नहीं रहे हैं। क्वालिफिकेशन तो बहुत बात की चीज़ है। क्या चीज़ है हम नहीं छोड़ पा रहे हैं? कंट्रोल ओवर किसी चीज़ के ऊपर हम अपना कंट्रोल नहीं छोड़ पा रहे। अरे ये मेरे भक्त हैं, ये इनको कोई लेने जाए मैं इन पर रूल करूंगा, मैं इनको प्रीच करूंगा, मैं इनको ये करूंगा, ये मेरा है, वो मेरा है, मैं इनका हूँ। दिस इज कंट्रोल। और हमारा रेपुटेशन या इमेज रहता है, कंफर्ट रहता है कि हम इसको कंफर्ट नहीं छोड़ पा रहे एक्चुअली। भाई मुझे ऐसा बैठने के लिए इतना ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, तब मैं जा नाम जप करूंगा। अरे मेरा नाम नहीं जप नहीं हो रहा है, ठंडी हो रही है, ठंडी, मुझे बिस्तर में कंबल में, फूलों वाले कंबल में बैठकर जप करने की आदत है। हम हमेशा सच सही रहने की जो आदत है हमारी, हम इसको नहीं छोड़ पा रहे। अरे भाई सही, वो कैसे सही होगा, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं प्रभुपाद को कोट कर रहा हूँ, मैं आचार्य को कोट कर रहा हूँ, मैं गोस्वामी को कोट कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, वो कैसे सही हो, गलत है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बुरी चीज़ हमारी जो है, हमारी मेंटेलिटी भक्ति करने की था, माई आवर वर्जन ऑफ डूइंग भक्ति, द मेंटेलिटी ऑफ, जो हमारी भक्ति करने की मेंटेलिटी है, हम उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये सबसे बुरा है। श्री रामचरितमानस में मानस जी में शंकर जी पार्वती जी को एक उपदेश देते हैं। फिलहाल पूरा मानस तो शंकर जी सुना रहे हैं पार्वती जी को, तो उसमें एक श्लोक, क्या कहते हैं, चौपाई बोलते हैं, उमा राम स्वभाव जी जाना, तह भजन तजी भावना आना। हे उमा, हे पार्वती, हे भवानी, जिसने राम जी के, जिसने हरि को, जिसने कृष्ण के स्वभाव को जान लिया, उसमें कोई और भजन तज के कोई और भाव आ ही नहीं सकता। लेकिन हमारा ही दिक्कत ये कि हम सब ये सब छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ये जो हमारी मेंटेलिटी है सबसे इम्पोर्टेंट, हम माई वर्जन ऑफ भक्ति, हम जब चाहे जब जब कर रहे हैं, जब चाहे हम माला कर रहे हैं, जब चाहे हम चाहे बुक रीडिंग कर रहे हैं, एक फिक्स टाइम नहीं है, एक फिक्स वो नहीं है, शेड्यूल नहीं है हमारा। जब मन गया हम इतना लेक्चर सुन लिया, इतना बुक रीडिंग कर लिया, आज इस बुक से साइंस ऑफ सेल्फ रिलेशन पढ़ लिया, कल टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ लिया, कल चैतन्य चरितमृत पढ़ लिया, जो हमारा वर्जन बना रही है, हमने अपने वर्जन भक्ति का बना लिया है। प्रेम तो महाप्रभु बरसा ही रहे हैं। वे रियली वांटेड प्रेमा, प्रेम तो मिल ही रहा है। प्रेम फॉर एग्जाम्पल जैसे बरसात होती है ना, तो बरसात तो जम के प्रेम की बरसात हो रही है, जम कर बरसात हो रही है, जम कर पानी बरस रहा, मूसलाधार वर्षा हो रही है प्रेम की। दिक्कत ये है कि जो एक परात ले लिया, क्या कहते हैं, पात्र जिसमें पानी को प्रेम भरना चाहिए, हमने वो उल्टा करके रखा है। शिला कदम कानन स्वामी महाराज कहते हैं, इट इज नॉट दैट देर इज नो मर्सी। कदम कानन महाराज की बहुत अच्छी बात कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइन, कि महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मर्सी नहीं है, प्रेम नहीं है, मर्सी नहीं है, कृपा नहीं है भगवान की। अरे कृपा तो भगवान इतनी कर रहे हैं, बताओ हमें कृपा में क्या चाहिए? भगवान इतने, इतना, इतने दयालु हैं भगवान, कितनी दया चाहिए? भगवान ने अपना, हमें हरि कथा दे दिया, अपना नाम दे दिया, अपने साथ भक्तों का संग दे दिया, मंदिर दे दिया, अपना फॉर्म दे दिया ड्यूटी के फॉर्म में। और कितनी, हाँ एक्चुअली हमें प्रेम करने का उतना सामर्थ्य ही नहीं है। हाँ, वी आर नॉट एलिजिबल टू डू प्रेम एट ऑल। भगवान प्रेम की बहुत एक
समुद्र है, पूरा ओशियन है, ओशियन है, जैसे कहते हैं ओशियन ऑफ मर्सी। भगवान ओशियन ऑफ लव है, ओशियन ऑफ प्रेम है। और हमारे अंदर जो हम प्रेम करने की इच्छा रखते हैं, डिजायर रखते हैं प्रेम करने की, वो कैसे, उस ओशियन में से एक बूंद ले लीजिए, और उस बूंद का एक 100 पार्ट थी, पता नहीं किसका मैंने एग्जाम्पल सुना था, उन्होंने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि भगवान ओशियन ऑफ लव है, उस लव में से एक बूंद निकाल लीजिए, और उस बूंद में से उसका 100 पार्ट कर दीजिए, और एक पार्ट में जो 100 का एक पार्ट है, वो पार्ट भगवान ने पूरी पृथ्वी पर बरसा रखा है। सोचिए अब आपके पलड़े में कितना प्रेम आया, कितना प्रेम करने को उतावले हो। हमसे ज्यादा तो भगवान उतावले हमें आलिंगन करने के लिए। तो एक कदम का नाराज करते कि इट इज नॉट दैट देयर इज नो मर्सी, ऐसा नहीं कि कृपा नहीं है। द थिंग इज हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको हमें कैसे, उस मर्सी को कैसे इस्तेमाल करना है, वो प्रॉब्लम आ रही है। देयर इज सो मच मर्सी फ्लोइंग, बरसात जम के हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। द थिंग इज हमने ही अपना पात्र उल्टा कर रखा है, हम भी अपना ढंग से साधना नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड। फिर यहाँ महाराज कहते हैं, लेट नथिंग स्टॉप अस, हमें इम्पेडिमेंट्स हटाने पड़ेंगे, अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा एट ऑल। प्रेम इज द गोल, कृष्ण प्रेम इज गोल है, कृष्ण प्रेम ही हमारा गोल है। मुक्ति मुक्ति भुक्ति कुछ नहीं चाहिए, हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। इतना बड़ा एम्बिशन रखे हैं, उसके बाद साधना जैसी साधना नहीं हो रही है। कृष्ण। वॉट एवर स्टॉप अस इज माया, दैट इज आवर ओन माया, जो रोक रही है हमारी खुद की माया है। धन महाराज कह रहे हैं, he also that when you find someone who help you to attain that prema, you don't talk about it with others, most important thing। रूप गोस्वामी भी ये चीज शेयर करते हैं, अपना भजन कथा न कहीं भी यथा तथा। हम जो भी भजन साधन करते हैं उसको सभी से बताना नहीं चाहिए कि इतनी माला हम कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, इतना भजन तक हम कर रहे हैं। लेकिन अब ये भी है कि अगर हम बताएंगे नहीं, तो हमें मेंटर्स को पता कैसे चलेगा कि भाई हमने इतनी माला की है, इतना देर प्रभुपाद का बुक रीड किया है। मेंटर्स को भी तो आखिर पता होना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए। तो महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपना रिपोर्ट मत दो, सीनियर्स की गाइडेंस मत लो, आप फिलोसफी को वेरीफाई मत करो, या सीनियर से कंसल्ट ना करो। महाराज ये नहीं कह रहे आप सहेजिया बन जाओ। महाराज कहने का मतलब है, अगर आपको कुछ अनुभूति हो रही है, उसको पहले मैच्योर होने से पहले एडवर्टाइज मत करो। हाँ, रिपोर्ट सीनियर से कंसल्ट करना इट इज नेसेसरी, इट इज मैंडेटरी। लेकिन कुछ अगर अनुभूति होती है, तो उसको एडवर्टाइज मत करो कि मैं देखो इतना क्या कहते हैं एलिवेटेड हो गया हूँ। जैसे शिला प्रभुपाद के टाइम पे था, अमरिंदर प्रभु के एक वीडियो आया था, उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि शिला प्रभुपाद के पास एक भक्त आते हैं, कहते हैं शिला प्रभुपाद, मैं जब जब करता हूँ तो मेरे वेन वेन आई चैंट हरे कृष्णा, तो यहाँ पर कुछ रेड लाइट जैसा जगमगाता है, सम रेड लाइट आई कैन फील देयर इन द सेंटर। शिला प्रभुपाद कहते हैं जस्ट चैंट हरे कृष्णा, इट विल गो अवे। फिर ऐसे ही भक्त आते हैं, प्रभुपाद, whenever I chant I can see Radha and Krishna playing in kunjas and performing pastimes। तो प्रभुपाद कहते हैं चैंट हरे कृष्णा, राधा कृष्णा विल गो अवे। प्रभुपाद प्री मैच्योर रियलाइजेशंस को सपोर्ट करते ही नहीं थे। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट रीड करते हैं, वैभव प्रभु जी आप रीड करेंगे। कृष्णा वांट अस टू वांट हिम, वी डोंट वांट टू वांट कृष्णा, बट कृष्णा वांट अस टू वांट हिम। हम कृष्णा को नहीं चाहते इतना, ना कृष्णा हमको चाहते कि हम उनको चाहें। वेरी गुड। यश प्रभु। कर्म है बुरे बुरे, और तुम गोलोक जाने की बात करते हो। बोया पेड़ बबूल का, और तुम आम खाने की बात करते हो। Very good। हम्म। अच्छा अच्छा जी, कोई नहीं प्रभु, हम ये रीड करते हैं। 4 important instructions। Traidas, when Gaur Govind Maharaj came to Prabhupada Desh in Vicenza in 1993, I the Prabhupada disciples and I went to see him। When we came into the room, Maharaj was chanting japa। वो सुनने का बहुत इंपॉर्टेंट है।
Maharaj was chanting japa. Then he turned and said, "There is a big problem in our movement because the leaders have no taste for this." किसके लिए? जप के लिए, हरि नाम के लिए. And he held up his japa bag. महाराज दिखाते हैं लीडर्स डोंट हैव टेस्ट फॉर दिस. अगर ऐसा सच में, अगर लीडर्स का टेस्ट नहीं होता ना, सही महाराज सही कह रहे हैं, अगर टेस्ट होता ना तो जो आज इतना हम सुन रहे हैं यहाँ पर, इन गुरु का फॉल डाउन हो गया, कल उनका हो गया, जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, जैसे आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीवन, लेकिन एक बेसिक सा एग्जांपल है, सबसे किसी से छुपा नहीं है, बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, इस्कॉन पटना का केस. देयर वाज अ लीडर, आप सभी जानते हो क्या हुआ. बिकॉज मेन थिंग इज हरिनाम. अगर हरिनाम सुधर जाएगा, हरिनाम पे टेस्ट है, हरिनाम में रुचि है, हरिनाम प्रॉपर सुबह हो रही है, तो ऑटोमेटिक सभी चीज़ें सुधर जाएंगी. लेकिन अगर हरिनाम में ही गड़बड़ी है, देन बहुत सारे डिवोटीज क्वेश्चन करते हैं, प्रभु जी कल ही एक प्रभु लक्ष्य प्रभु, उनका प्रश्न है कि मेरा जब सही से नहीं हो रहा है, ऐसा मतलब कुछ उनका प्रश्न है. तो मैंने कहा कि चैंट हरे कृष्णा, सब सही होगा. एक बेसिक सा सोल्यूशन मैंने अपने सीनियर से पाया. मेरा मन नहीं लग रहा है, चल रहा है, चलो ठीक है, मेरा मन नहीं लग रहा है. अब हम क्या कर सकते हैं, अपना मन जो है, जिसका मन लग रहा है उसके साथ एसोसिएट कर दो. हमारे गुरुजन है, हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, शिला प्रभुपाद हैं, हमारे गुरुजन हैं या सीनियर डिवोटीज हैं, उनके साथ अपने मन को आप ऐड कर दो. देखिए ऑटोमेटिक हमारा मन लगता चला जाएगा. सिंपल सा सोल्यूशन है इसका. वेरी गुड. He held up his japa bag. The meaning he held up his japa bag. In that meeting, he gave me some advice, personal instruction. सुनी का personal instruction महाराज दे रहे हैं. He said, सभी के लिए, आप सभी के लिए, if you want to be Krishna conscious, then you should know these four things. First, keep distance from envious, critical, political minded devotees. जो प्रभु जी वो ऐसा कर रहा है, उसको ऐसा करना चाहिए, प्रभु जी वो देखिए ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनको रूप प्रभुपाद क्या कहते हैं इस बुक में, ये रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, इनको ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए. अरे प्रभु जी वो प्रेसिडेंट प्रभु ऐसा कर रहे हैं, प्रसादम में ऐसा गड़बड़ी हो रही है. तो इन सब डिवोटी से बच के रहिए. ग्रम में वार्ता नहीं, जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, भार न खोइबे और भार न पीवे, ग्रम में वार्ता न करीबे और ग्रम में वार्ता न सुनी. तो ना ग्रम में वार्ता करनी किसी से, फालतू की बात, ना ग्रम में वार्ता सुननी है. पहली चीज. सेकंड, टेक केयर ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ फर्स्ट, बिकॉज एवरीथिंग एल्स यू विल हैव टू लीव हियर इन दिस वर्ल्ड. जन्म सार्थक करिए पर करो उपकार. पहले अपना लाइफ सार्थक करना है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम शिला प्रभुपाद को ले सकते हैं. शिला प्रभुपाद ने क्या किया, राधा दामोदर में प्रीचिंग करने से पहले 12 13 साल 20 साल प्रभुपाद ने खुद अपना एक रिस्क, ये क्या कहते हैं वो, तपस्या की, खुद जब किया, खुद पहले अपना साधना स्ट्रांग किया. 12 13 14 साल पहले खुद अपनी साधना स्ट्रांग की प्रभुपाद ने. जब हाँ प्रभुपाद को लगा ना आई हैव डन मच भजन, कि अब मुझे प्रीचिंग करनी चाहिए, 18 18 20 20 घंटे प्रभुपाद जब किया करते थे, रोते थे रूप गोस्वामी की समाधि पे राधा दामोदर में. जब ऐसा हो गया, मतलब लोग कहते हैं कि उस प्रकार का किसी ने जब देखा ही नहीं आज तक, जिस प्रकार शिला प्रभुपाद करते थे, जिस प्रकार प्रभुपाद करते थे रूप गोस्वामी की समाधि पे. तो प्रभुपाद को जब लगा कि अब मैंने अपना जन्म सार्थक कर लिया है, तो उनको कोई नीड नहीं थी, ही इज ऑलरेडी अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. उन्होंने सोचा जब कर लिया, नाउ थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे महाराज, गो एंड प्रीच. तब प्रभुपाद ने प्रीचिंग शुरू की. तो जन्म सार्थक करी पर करो उपकार. देन दिस विल बी द मोस्ट प्लीजिंग टू शिला प्रभुपाद. प्रभुपाद को प्रचार बहुत पसंद है, लेकिन प्रचार ऐसा जो हम आचार में उसको ला रहे हैं. देन rise at 3 o'clock and without offense chant all your rounds at once before the forms of Radha and Krishna. Then he told us, now I have to chant. Rise at 3 o'clock. यहाँ 4 से 5 बजे नहीं उठाया जा रहा है. महाराज कहते हैं राइज एट 3 o'clock, बिकॉज वो खुद 2 3 घंटे सोते थे सिर्फ. एक बार ऐसा था, मैंने फर्स्ट टाइम बहुत बार रिपीट किया, फिर आप रिकॉर्डिंग से को पुराना, तो उसमें कहीं ना कहीं 2 3 बात मिल ही जाएगा कि ऐसा होता है. शिला प्रभुपाद एक बार मंगला आरती के लिए जाते हैं. तो उस टाइम प्रभुपाद क्या कहते हैं, अपने विदेशी, मतलब जो उनके विदेशी डिसाइपल्स होते हैं, वेस्टर्न डिसाइपल्स होते हैं, उनको लेकर क्या कहते हैं इंडिया आए होते हैं. दैट वॉज अ टाइम ऑफ कार्तिक, कार्तिक का टाइम रहता है, प्रभुपाद अपने वक्त शिष्य को लेकर वृंदावन आए होते हैं. तो मंगला आरती का टाइम होता है, प्रभुपाद मंगला आरती के लिए आते हैं. आफ्टर मंगला आरती प्रभुपाद नोटिस उनके 2 सर्वेंट्स नहीं है. तो प्रभुपाद कहते हैं वेर आर थे. तो भक्त आज के साथ वो कहते हैं कि प्रभुपाद दे आर स्लीपिंग. प्रभुपाद बहुत रुष्ट हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं. प्रभुपाद मंगला आरती से उस टाइम मतलब जप भी नहीं करते, फिर चले जाते हैं.
देन अगेन वो भक्त, उन भक्तों के कान में खबर पहुंच जाती है कि शिला प्रभुपाद बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है। तो जब ऐसा होता है तो जाते प्रभुपाद के पास माफी मांगने की, शिला प्रभुपाद वगैरह। प्रभुपाद वहाँ पहले तो डांटते हैं, फिर कहते हैं इफ यू कांट वेक, प्रभुपाद क्या कहते हैं, इफ यू कांट वेक अर्ली फॉर राधा एंड कृष्णा, यू कैन नॉट सेक्रीफाइस योर स्लीप। अगर अपनी सिर्फ नींद की त्याग नहीं कर सकते इस राधा एंड कृष्ण को पाने के लिए, इतना बड़ा एम्बिशन है, इतना बड़ा गोल है, if we can't sacrifice our sleep, how can we enter in Golok Vrindavan? It is नित्य धाम, नित्य सेवा is there। वहाँ पे सोने को नहीं मिलेगा, there is नित्य सेवा, eternal service is there। वहाँ पर हम कैसे जगेंगे? अरे वो, फिर गौर गोविंद महाराज was amazing person। On one side he was like a great sage, but at the same time he was like completely innocent child। Vajradhapi Kathoram Kusumadhapi Komalam, as thunderous, as hard as thunderbolt, and as soft as a petal of lotus। महाराज ऐसे। नेक्स्ट पास टाइम है, इसको हम समराइज कर देते हैं। इसमें एक ही चीज़ सिग्निफिकेंट है, दो महाराष्ट्र पास टाइम से सिग्निफिकेंट है, बट इट इस वही है कि अभी हमने पिछले पढ़ा कि अ, महाराज रथ यात्रा के लिए आते हैं, एंड सिमिलर कंटिन्यूएशन है। फिर महाराज बैठते हैं, महाराज वॉज वेरी हम्बल, महाराज फिर कथा करते हैं। एंड महाराज की कथा हम जानते हैं, महाराज जब कथा करने बैठते थे तो फिर आओ देखा नत्था, महाराज लंबा लंबा कितने कितने लंबे लेक्चर्स महाराज करते थे। देन यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट है मैं उसको डायरेक्ट रीड करते हैं। हाँ प्रभु, पेज नंबर 172, लास्ट पैराग्राफ, पहले मतलब पहले पैराग्राफ का लास्ट थर्ड टू फोर लाइन। अच्छा हाँ, यहीं से शुरू करते हैं, चलिए। नहीं नहीं प्रभु, ऊपर करते हैं, डायरेक्ट यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट काइंड ऑफ सन्यासी। माता जी आप रीड करेंगी, राशि माता जी। समय प्रभु जी। जी प्रभु, रीड करें। Hare Krishna. A different kind of sannyasi. Satchidanand Swami. I thought I have to get to know this personality. I cancelled a preaching engagement so I could take prasadam with him. I was thinking that he was similar to other sannyasi I knew. You meet them over prasadam at noontime and talk while you eat. However, it quickly became clear as I sat with him that day that he was different. He didn't like to talk when he took prasadam. He obviously wanted to honor prasadam, but because he was extremely polite and kind-hearted, he didn't tell me directly. I only noticed that his answers were brief. After some time, I understood the rule that you don't talk to during prasadam. You honor the Lord's prasadam. So I also observed silence, and I felt happy to be in the presence of true bhakta. As अरे soon वो, as the presence, अरे वो प्रभु एक मिनट। यहाँ कह रहे हैं, he didn't tell me that, I only noticed and that is his answer was brief, after some time I understood the rule that you don't talk during prasadam, you honor prasadam, it's lord's prasadam। हम क्या करते हैं, प्रसाद को खाते हैं, वी ईट प्रसादम, प्रसाद पाते हैं, और दैट इज वेरी बिग ऑफेंस। हम प्रसाद खाते हैं, प्रसाद इज mercy reciprocation of कृष्णा। इस प्रसाद इज एक्चुअली फॉर्म ऑफ कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ फूड, और हम कृष्ण को खाते हैं, कृष्ण को कंज्यूम करते हैं। द थिंग शुड बी, हमें प्रसाद को खाना नहीं चाहिए, पाना नहीं चाहिए, प्रसाद को ऑनर करना चाहिए। वी शुड सर्व प्रसाद। हम इससे सभी प्रसाद खाते हैं, बीट प्रसादम महाप्रसादम, बट वी शुड ऑनर प्रसादम, वी शुड सर्व प्रसादम। Oh, it is touched by the lips of Krishna, we should think, we should taste touched by the lips of Srimati Radharani, we should honor, we should serve। श्रीपद आनंद प्रभु एक एग्जांपल देते हैं कि उनके बुक में ये एग्जांपल है, वी शुड सी प्रसादम एज अ सीता महारानी, सीता ठाकुरानी। सीता मतलब सीता मैया, भगवान रामचंद्र की भार्या। कैसे? सीता मैया को दो लोगों ने देखा था, एक हनुमान जी ने, एक रावण ने। वी फॉलो द टेंडेंसी ऑफ रावण। प्रसादम को देखकर हम उसको खाने की टेंडेंसी रखते हैं, प्रसादम को देखकर हम एंजॉय करने की टेंडेंसी रखते हैं। ईटिंग मतलब एंजॉयिंग, एंजॉय करना चाह रहे प्रसादम को। एंड हनुमान जी क्या कर रहे थे?
वैन ही सॉ सीता मैया, सीता मैया की ब्यूटी दोनों ने देखी तो सीता मैया की सराहना कर रहे थे, सीता मैया को सर्व करना चाह रहे थे हनुमान जी। ऑनरिंग मतलब वी आर सर्विंग, वी आर सर्वेंट ऑफ प्रसादम। तो हमें प्रसादम को किस नज़र से देखना चाहिए? सीता मैया। ऐसा नहीं कि अब बहुत टेस्टी प्रसादम आ गया, बहुत एलिगेंट प्रसादम आ गया तो अब टूट पड़ना उसी पर। प्रसाद ही सब कुछ है, वही पाना है। यहाँ पर अगर हम ये अप्लाई कर देंगे तो रूप गोस्वामी का पहला जीवो वेगम उदरोपस्थ वेगम, ये तो फिर एंड हो जाएगा। पहला ही जो रूप गोस्वामी का इंस्ट्रक्शन है, तो हमें प्रसादम को सर्व करना चाहिए। वी शुड सर्व प्रसादम। वेरी, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैं भी, मेरे अंदर भी ये टेंडेंसी है। मैं आप लोग से अलग नहीं हूँ। आप लोग तो फिर भी बहुत शुद्ध भक्त हो। जब हमारे अंदर ये टेंडेंसी रहेगी ना कि वी हैव टू ईट प्रसादम, वी हैव टू फिनिश प्रसादम, तो फिर वो बेनिफिट नहीं कुछ देगा। हाँ, कुछ सुकृति मिल जाएगी, देयर विल सम सुकृति। बट जब हमारे अंदर ये टेंडेंसी आई, ओह इट इज टच बाय द लिप्स ऑफ राधा रानी, इट इज टच बाय द लिप्स ऑफ श्रीमती राधा रानी शिव कृष्णा, इट इज टच्ड बाय द लिप्स ऑफ गोपीज एंड गोपास, तो हमारे अंदर उसको सर्व करने की टेंडेंसी आई। यू विल सी इज एज अ मर्सी। हम उसको कंज्यूम करना चाहते हैं। मर्सी को क्या नाम है, ग्रास्प किया था, मर्सी को रिसीव किया जाता है, हम कंज्यूम करना चाहते हैं मर्सी। वेरी गुड। जी, हाँ प्रभु, As soon as the कंटिन्यू प्रभु। prasadam was over, as soon as the prasadam was over, it was clear that Maharaj was then ready to talk with me and answer any question I had. I understood from his serious demeanor that he was not a person to engage in a small talk. Normally, you would ask a sannyasi, how was your journey? Was the transport to your satisfaction? Were the prasadam arrangement good? But I understood he had much more important subject to talk about. So I asked him, Maharaj, you lecture in a way which is entirely different than other devotees. Why do you do this? Is there any some reason? Maharaj seems to like that question. He began to explain to me that we have to present the philosophy in detail. We have to talk personally about Radha and Krishna, or as he had done the day before, about Balram and his pastime. We have to do it in such a way as to show how Sri Prabhupada has expressed everything in वेरी his गुड books. प्रभु, आप महाराज से फिर से पढ़िएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस पैराग्राफ को बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़िएगा। एक्चुअली मैंने हाईलाइट किया फ्री, बट ये पीडीएफ में आया नहीं है। हल्का आप देख सकते हैं, Okay. ये पूरा महाराज से प्रभु। अगेन फिर से आप पढ़िएगा महाराज से, Okay. सब्जेक्ट तक। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा क्या इसमें। जी Okay. प्रभु। Maharaj seemed to like that question. He began to explain to me. Maharaj seems to like that question. He began to explain to me that we have to present the philosophy in detail. We have to talk personally about Radha and Krishna, or as he had done the day before, about Balram and his pastime. We have to do it in such a way as to show how Sri Prabhupada has expressed everything in his books. Maharaj says that we wanted to show how all his further information, which he gave all us, supporting Sri Prabhupada's statements. In this way, he should show that in Prabhupada's teachings there is a vast treasure of knowledge which is very deep. He said to me, when you only dive a little bit into the ocean, you only get a life green plateau floating on the surface. But if you go very deep, you get pearls. He wanted to explore the ocean of Prabhupada's teachings and prove that Prabhupada covered all the subjects. Hare Krishna. वेरी गुड। पहले यहाँ लाइन देखते हैं, वी हैव टू प्रेजेंट फिलोसफी इन डिटेल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब एक तरीके से ये सिद्धांत था, एक तरीके से इसको आप गांठ मान लीजिए। प्रभु स्क्रॉल कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। वी हैव टू प्रेजेंट फिलोसफी इन डिटेल। परम पूज्य श्री राधानाथ महाराज का एक लेक्चर था, लेक्चर तो याद नहीं कौन सा है। तो उस महाराज एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करते हैं। क्या बोलते हैं? भक्ति मीन्स डिटेल, डिवोशनल सर्विस, डिवोशन मीन्स डिटेल। एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा, वॉट एवर एक्टिविटी, महाराज कहते हैं वॉट एवर एक्टिविटी वी डू, वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ फॉर कृष्णा, इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। हम कुछ भी अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, इफ़ वी आर चैंटिंग, इफ़ वी आर स्टडिंग, इफ़ वी आर अटेंडिंग लेक्चर, इफ़ वी आर डांसिंग, इफ़ वी आर वर्किंग, इफ़ वी आर डूइंग जॉब, वॉट एवर सिंगल एक्टिविटी,
यू हैव टू डू सेम, मुझे हमें वही करना है। दैट विल प्लीज कृष्णा, दैट विल प्लीज लॉर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये चीज़। और नाउ महाराज फिर रिलेट करते हैं। देन इफ इट इज फॉर कृष्णा, अगर कृष्णा के लिए, श्रीमती राधा रानी के लिए, राधा श्याम सुंदर के लिए, then how you cannot go for the maximum detail? Whether we cook, whether we offer, whether we speak, whether we preach, whether we chant, whether we hear, whether we serve, whatever we do, we have to do in detail. And if it is for Lord, if it is for Krishna, then why we should not go till the maximum extent in detail? Then Maharaj फिर बोलते हैं, till the extent, till the extent we pay attention to the detail, जहाँ तक we pay attention, मतलब जहाँ तक हम डिटेल में जाते हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ भी सर्विस, कुछ भी एक्टिविटी, तो जहाँ पर हम अटेंशन डिटेल की तरफ देते हैं, till that action mark, I say it is a proof that we want to please Krishna, we want to please Radha Shyam Sundar. Very good. डिटेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रीचिंग कर रहे हैं, अगर हम जब कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, डिटेल इज नेसेसरी। अगर हम सर्विस, कोई भी सर्विस कर रहे हैं, हम डीडी में, डीडी डिपार्टमेंट में कोई सर्विस कर रहे हैं, वेदर गारलैंड मेकिंग में, ड्रेस मेकिंग में, कुछ भी, वॉट एवर, तो हमें डिटेल में करना हर चीज़ें। दैट टिल द एक्सटेंट वी वांट टू प्लीज राधा श्याम सुंदर, डिटेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल, बहुत सिग्निफिकेंट है। समवेयर आई हर्ड राधा रानी loves detail. Shrimati Radha Rani knows for her detail. She notice everything, small thing, every small thing she knows and does in detail. राधा रानी जो कुछ भी करती है, श्रीमती राधा रानी वो डिटेल में करती है। वेदर एवरी, कोई भी सर्विस, वेदर शी नोज व्हेन कृष्णा विल स्माइल, व्हेन कृष्णा, व्हाट टाइम कृष्णा ईट्स, व्हाट टाइम कृष्णा गेट एंग्री, व्हाट टाइम कृष्णा वेक्स, व्हाट टाइम कृष्णा ईट्स व्हाट, किस टाइम कृष्णा को ये पसंद है, किस टाइम कृष्णा स्माइल करते हैं, किस टाइम कृष्णा को ये इस रंग का ये वस्त्र पसंद है, किस टाइम कृष्ण को ये लीला करनी है, किस टाइम को कृष्ण को कौन सी ऋतु पसंद है, कौन सा सीजन पसंद है, किस टाइम कृष्ण को कौन सा फ्रूट पसंद है, कौन सा गार्लैंड कृष्णा को इस टाइम पे सुबह के टाइम अत्यधिक सुख देगा, कौन सा गार्लैंड कृष्णा जब वन में जाएंगे गाय चराने, उनको कौन सा सुख देगा, कौन सा गार्लैंड कृष्ण को रात्रि में सुख देगा, कौन सा वस्त्र उनको ज्यादा आराम देगा। राधा रानी लव्स डिटेल। एक वास्तव में कि ऐसा होता है कि कृष्णा वन में जाते हैं, तो उस टाइम बहुत गर्मी होती है, तो सूर्य का ताप बहुत तेज होता है। आई हर्ड समवेयर, पता नहीं सही है गलत, बट एज शेयरिंग सम ऑथेंटिक सोर्स से मैंने सुना था। तो मतलब गर्मी में ताप होती है, तो जब ताप होती है तो राधा रानी बहुत स्वेट करने लगती है। सो राधा रानी सोचती है, व्हेन आई एम कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, और मैं इतना स्वेट पसीने से, मतलब इतना स्वेट हो रहा है, देन कृष्णा वेंट फॉर गेजिंग काउस, कृष्णा गौ चरण लीला के लिए गए। और उनको कितना पसीना आ रहा होगा। व्हाट शी डज, अपने जो अंगुष्ठ होते हैं, पैर का अंगुष्ठ, सी प्रेसेस हार्ड, मतलब वो एक तरीके से सूरज का टेम्परेचर डाउन कर रही है विद थंब, एंड एक फूंक मारती है जिससे प्रकृति में थोड़ा सा ठंडा कर जाए, सो दैट कृष्णा गेट्स लिटिल प्लेजर इन दैट ठंडक। वेरी गुड। तो हमें हर चीज़ को डिटेल में प्रेजेंट करना है, टिल द एक्सटेंट इफ वी नेग्लेक्ट डिटेल, अगर हम डिटेल नेग्लेक्ट करें तो ऐसा जान लीजिए वी आर नेग्लेक्टिंग द मूड ऑफ राधा रानी, वी आर नेग्लेक्टिंग राधा भाव। So we have to present everything, कोई भी सर्विस, चैंटिंग, जपा, कुछ भी हो, till the extent we want to please Radha Shyam Sundar, we have to present everything in detail. हरे कृष्ण। ना यहाँ महाराज क्या कह रहे हैं, we have to do it in such way that to show how Srila Prabhupada has expressed everything in his book. महाराज said that multiple, yeah, I think third या fourth time हम पढ़ रहे हैं इस बुक में, महाराज saying everything is there in Srila Prabhupada books। अभी पिछले लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था, एक कुछ पास टाइम में था, when महाराज said that everything is there in Srila Prabhupada books। I think हम यही पढ़ा था। Something was their topic. Then Maharaj said, everything is there in Srila Prabhupada books. Deep Tattvas in Prabhupada books. Very good. Okay. He wanted to show how all his further information, which he gave all supporting the Srila Prabhupada statement, Maharaj बताना चाहते हैं, whatever Maharaj lecture gives, मैंने पहले भी रिपीट किया, whatever Maharaj lecture देते थे, everything he relates to Srila Prabhupada books। एवरीथिंग मतलब क्या, हमें एवरीथिंग, जैसे महाराज ने पहले डिस्कस किया कृष्ण प्रेम के बारे में, इफ यू वांट कृष्ण प्रेम, तो एवरीथिंग का मतलब क्या है, एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी टू गो बैक, कम बैक टू गॉड, टू गो बैक टू अवर राधा श्याम सुंदर, टू गेट everything that is to get necessary to get our goal, कृष्ण प्रेम, that प्रभुपाद ने दिया है। एवरीथिंग that is required for संबंध अभिधेय प्रयोजन,
संबंध अभिधेय प्रयोजन क्या? संबंध। हु एम आई, मैं कौन हूँ? हु इज कृष्णा, हु इज लॉर्ड, हु इज राधा रानी, हु इज माया, हु इज गुरु, हु व्हाट इज गुरु तत्व, एक जीव तत्व, भक्ति तत्व, ज्ञान तत्व, ईश्वर तत्व, वॉट एवर तत्व प्रभुपाद इज गिवन इन हिज बुक्स। अभिधेय, हाउ टू चैंट। अब संबंध तो बन गया, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, माया कौन है, गुरु कौन है, गोल क्या है, ये तो पता चल गया, तत्व क्या है पता चल गया। उसको हमें पाना कैसे है? अभिधेय, हाउ टू चैंट, हाउ टू सर्व, हाउ टू लिव, हाउ टू प्रे, हाउ टू एसोसिएट विद डिवोटीज, आपके साथ संग कैसे करें। That Prabhupada, how to rise and even fall and again rise in bhakti. That Prabhupada ने प्रभुपाद ने इतने डिटेल में प्रभुपाद क्या है given in all his books. And प्रयोजन, प्रयोजन क्या? What is our goal? कृष्ण प्रेम, उसको पाना कैसे है? That is प्रयोजन। प्रभुपाद ने सब दिया, वॉट एवर नेसेसरी, एवरीथिंग मतलब यही है, एवरीथिंग मतलब यही है, वॉट एवर इज नेसेसरी। प्रभुपाद ने सब कुछ दिया, एवरीथिंग इन हिज बुक्स। कोई भी तत्व नहीं बचाया, प्रभुपाद हैव टच्ड एवरीथिंग। हाँ, समवेयर ही गिवन थिंग्स इन अ सीड फॉर्म, बीज फॉर्म में दिया है। अब उसको हमें अपनी भक्ति से, अपने क्या नाम साधना के बल पे, साधु गुरु की कृपा से उसको एक पौधे का रूप देना है। प्रभुपाद की लेगेसी में हमने पढ़ा था। व्हाट, फिर से रेट करते हैं वो चीज़। वो चैप्टर तो मुझे बहुत पसंद है। हम्म, एक मिनट रुकते हैं, एक मिनट। हाँ, Prabhupada purports needs explanation. The Bhakti Vedanta purports are unique. Vaishnava philosophy is not easy to describe. It is very subtle and very sublime philosophy. It is very difficult philosophy. Prabhupada explained everything very nice in easy language. Srila Prabhupada is especially empowered. Shaktavesh Avatar. Shakti Avesh Avatar. Sent by Shri Chaitanya Mahaprabhu. Otherwise, no one can give such things what he has done. ये तो हमने चैनल पर अपलोड किया, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। What Prabhupada have done, nobody have done till now. उस चीज़ को नहीं जाएंगे। One synonyms of ocean is Ratnakar or Ratnagarbha. Ratna means invaluable gems. These are found in the Garbha valley of the ocean. But who cannot collect them? ध्यान से सुनिएगा। But who cannot collect them? Only who dives very. But who can collect them? उस रत्न को पा कौन सकता है समुद्र में से? Only who can dives very deep to the deepest region can collect those gems. उस रत्न को पा सकता है। Like Andhra Prabhu used to say, we don't need to go higher, we need to go deeper. बहुत ऊपर नहीं जाना, बहुत नीचे जाना, बहुत अंदर जाना है। इफ यू फ्लोट ऑन द सरफेस, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्लैंकटन, अलगे, जो समुद्र के ऊपर एक कचड़े के समान बैक्टीरिया वगैरह, अलगे तैरते रहते हैं। मैं तो भूल भी गया वो सारी चीजें। भाई वाला कौन है? एल्गे, प्लैंकटन, किसी को याद है? कोई है भाइयों का? स्ट्रॉबेरी का। If you float on the surface, you will collect only fish. Similarly, Bhagavatam is unlimited ocean, and you have to dive deep into Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada said, everything is in my book. Everything हमने बताया है, whatever is required. Everything Srila Prabhupada have given in the book. संबंध अभिधेय प्रवचन, everything Prabhupada have given. भाई मैंने रिसेंटली एक नॉर्मल सा बुक, छोटा सा बुक, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, उसमें से आई शेयर्ड मैंने गुरु तत्व पे समथिंग आई शेयर्ड रिसेंटली। ही हैज सेड, he has given everything, but in the seed form. He has only given a hint. Now you have to dive deeper and deeper to the deepest region. Then you will collect the invaluable gems there. अरे वो, जब ऐसा लगे कुछ नहीं मिल रहा है, कि अरे रस नहीं मिल रही, पहली बात तो प्रभुपाद ने इंस्टेंट रसा नहीं दे दिया कि यू विल गेट इंस्टेंट रसा। कोई से डिसाइपल आते हैं प्रभुपाद के, प्रभुपाद उन फलाना गुरु के बुक में ऐसा ऐसा मुझे तुरंत रस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ड्राई ड्राई लग रहा है। प्रभुपाद ने कहा दे आर रसिकल, डिफरेंट, बस सहेजिया कुछ ऐसे थे। प्रभुपाद एक चीज जानने के लिए, हायर लेवल जाने के लिए, पहले अगर आपको ट्वेल्थ में जाना है तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। बिफोर एंटरिंग इन वृंदावन लीला यू हैव टू अंडरस्टैंड कुरुक्षेत्र लीला, प्रभुपाद ने बोला। और हमें समझ में नहीं आ रहा, देन वी आर इम्प्योर। मैंने पिछले सेशन में बताया था दैट शिला प्रभुपाद हैड इवन इवन गिवन माधुर्य रसा इन भगवत गीता। देन आई आस्क्ड दिस टू राधेश्याम प्रभु, तो राधेश्याम प्रभु ने बोला हाउ। फिर से मैं शेयर करता हूँ, मैंने पिछले सेशन में कुछ चीज़ बोला था, कैसे, हाउ प्रभुपाद हैव गिवन माधुर्य रसायन भगवत गीता। प्रभुपाद, मैंने प्रभु को शेयर किया, प्रभु मैंने कहीं सुना था, प्रभु का आई विल स्टार्ट। तो प्रभु कहते हैं फिर हाउ यू, मतलब कैसे,
हाउ यू थिंक माथुर मतलब मैंने प्रभु को कैसे मतलब ऐसे तो कहीं नहीं माथुर रसम मीन्स व्हेन राधा रानी से श्रीमती राधा रानी से गोपीज आर देयर तो प्रभु समझाते हैं दैट हाउ हु इज स्पीकिंग भगवत गीता कृष्णा इज स्पीकिंग व्हिच कृष्णा कृष्णा हु इज beloved ऑफ श्रीमती राधा रानी of Vrindavan, Krishna of Vrindavan, Krishna of Gopis. He is speaking Bhagavad Gita. When he says Sarvadharman Paritajya, he wants to give you that prema. इसलिए कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ. I want to give you that prem. Very good. आगे read करते हैं. Actually प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते थे? मैंने प्रभुपाद को उन्होंने क्या बोला था? इंस्ट्रक्शन दिया था. Whenever you get money, print books. बुक्स आर बृहद मृदंग. बृहद मृदंग क्या? ऐसा मृदंग जिसका कीर्तन मतलब ऐसा कीर्तन वो मृदंग करता था कि लो प्रलोक तक उसकी गूंज जाती थी. सिमिलरली बुक्स आर बृहद मृदंग. प्रभुपाद के जो बुक्स हैं दे आर बृहद मृदंग. मृदंग का आवाज एक लोक से प्रलोक जाता था. बुक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाएंगी. दैट्स व्हाई दे आर बृहद मृदंग. जो कहते हैं ना ये मतलब जो लोग होते हैं कहते हैं कि एवरीथिंग इज नॉट देयर इन शिला प्रभुपाद बुक्स. एक्चुअली उनके पास वो सामर्थ्य नहीं कि सब कुछ वो ग्रास्प कर पाए. वॉट एवर इज देयर इन शिला प्रभुपाद बुक्स उनके पास सामर्थ्य नहीं है उसको ग्रास्प कर पाए. वेरी गुड. आगे रेड करते हैं. हरे कृष्णा आगम प्रभु जी दंड थोड़ा. आप रीड करोगे प्रभु? आगम प्रभु. हाँ श्योर प्रभु. आपके प्रश्न का आंसर मैं दे पाऊंगा इतनी मेरी सामर्थ्यता है. जी माता जी आप रीड करिए. यू कुड आस्क मी इन पर्सन. इफ आई विल एबल आई विल आंसर. हरे कृष्ण प्रभु जी रीड करें. जी माता जी प्लीज. Preaching to the preachers. Sachidanand Swami Gaur Govind Maharaj also told me that he wanted to train the preachers. Much later, after I started listening to his tapes, I heard how in New York he gave 3 points regarding why he preached the way he did. One was to show how everything is in Prabhupada's book. A second was to train the preachers. And the third point was that he wanted to keep devotees from leaving ISKCON. When I heard him talk like this, I immediately made a strong alliance with him. I thought, oh, this is a genuine servant of Srila Prabhupada. He really has a mission. He has thought about it. नेक्स्ट विश. यस प्रभु. ये अंडरलाइन बुक है ये ध्यान दीजिएगा. महाराज के तीन इंस्ट्रक्शन है. महाराज के मतलब तीन डिजायर थे. क्या था फिर से डिस्कस करते हैं. वन वाज टू शो दैट हाउ एवरीथिंग जैसे हमने डिस्कस किया हाउ एवरीथिंग इज देयर इन शिला प्रभुपाद बुक्स. सेकंड ही वांट टू प्रीच द प्रीचर्स. महाराज का डिजायर था ही वांटेड टू प्रीच द प्रीचर्स. अब इस पे डिस्कस करते हैं. देन थर्ड वाज ही वांटेड टू कीप डिवोटीज फ्रॉम लिविंग इस्कॉन. जो दूसरे मठों को जो अगर ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे सेक्ट को जो अगर ज्वाइन कर रहे हैं इस्कॉन छोड़कर. हाँ जी प्रभु. वैभव प्रभु आप रीड कर सकते हैं प्रभु. लास्ट पैराग्राफ है सेशन का इस बुक का तो आप रीड कर सकते हो. जी प्रभु. मुझे पढ़ूं प्रभु? है पढ़ूं? प्रभु कौन पढ़ रहा है? ओके. वैभव प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा दंड प्रणाम. स्टार्टिंग से विभू जी. आई हैप्पीली. हाँ जी प्रभु. आई स्टार्टिंग से हैप्पीली पढ़ना प्रभु. विभू जी. जी जी. I happily accompanied Maharaj to the next destination, which was the town of Vesibeden, about 90 kilometer northwest of Heidelberg. It was a public program with a lot of newcomers, so it was a little difference from his previous talk. This time he didn't touch so much on taste detail about Krishna Balram pastimes and their nature. He gave a very well constructed preaching lecture to a German audience of people who were absolutely new to Krishna consciousness, although it was a simpler subject.
It was clear that he relished it by way that he exploded it laughter from time to time, although the people didn't know much about Krishna consciousness. As I recall, as I recall, Maharaj spoke from Bhakti Vinod Thakur Jivani Dharma about the five stages of consciousness: converted consciousness, uh, Shukan consciousness, building consciousness, blossoming consciousness, and fully blossoming consciousness. When Maharaj was leaving Germany, I wanted to say goodbye. A devotee was driving him to France in the car. I accompanied him to the vehicle, and I saw was extremely simple, uh, rickety old car. If uh, Kolvens Sridhar had a car, Davecha it would Sridhar have had a been that car. But Gaur Govind Maharaj looked very content, beaming in ecstasy. He told me, when I am preaching, I have life. That all he wanted. very good. एक मिनट. यहाँ महाराज ने 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है. जैव धर्म से about 5 stages of consciousness: covered consciousness, shrunken consciousness, budding consciousness, blossoming consciousness and fully blossoming consciousness. तो महाराज ने इसको अपनी बुक में मेंशन किया है, दूसरे बुक में. चलिए इसके बाद में मिलता है, फिर पढ़ते हैं इसको, किसी तो दूसरी बार पढ़ते हैं. यहाँ महाराज के क्या 3 डिजायर्स थे. only was to show everything is there in Srila Prabhupada books. ये जब हम समझ में आ गया व्हाट इज एवरीथिंग मीन्स, क्या है श्रील प्रभुपाद की बुक्स में एवरीथिंग इज देयर. संबंध विजय, संबंध तत्व, विधेय तत्व एवं प्रयोजन तत्व, सिद्धि. सेकंड वाज टू ट्रेन द प्रीचर्स. हमने एक चीज डिस्कस की पहले, हमने केसेस देखे कि पटना में ऐसा केस हुआ. द मेन थिंग इज आवर मॉर्निंग साधना. तो आज के टाइम पे क्या है, बहुत सारे प्रीचर्स, मैं किसी को टारगेट नहीं, किसी को डायरेक्ट नहीं, बट बहुत सारे प्रीचर्स है जिनमें लैक ऑफ, मतलब जिसमें मॉर्निंग साथ नहीं. अभी रिसेंटली एक डिवोटी मेरे पास कहाँ से, कहीं से तो टेक्स्ट किया था उन्होंने. मैंने अपने मेंटर के बारे में, मेंटर से उनकी बात कराई थी. आई थिंक सब ही वॉज फ्रॉम मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश से किसी, आई थिंक भोपाल या किसी पार्ट से थे, मध्य प्रदेश के ही थे. तो वो एक सेंटर था, छोटा सेंटर था इस्कॉन का. अ, तो वहाँ पर क्या था, अब जो वहाँ पर जो लीडर, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, भोपाल के ही शायद थे प्रभु. तो बता रहे थे कि प्रभु ऐसा हो रहा है कि जो प्रेसिडेंट यहाँ के, वो खुद मंगल आरती में नहीं आते. वो खुद मतलब टेम्पल में ही उनका प्लेस है रहने का. ही इज अ गृहस्थ एंड वो मंगल आरती में नहीं आते, मतलब सोते होते जब मंगल आरती हो जाती है देन ही वो गोस फॉर वॉकिंग वॉच. मतलब ऐसा है कि जो वैष्णव सदाचार है, ही इज नॉट फॉलोइंग दैट बेसिक वैष्णव सदाचार व्हाट वाज देयर. एंड देन डिवोटीज में डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे. ओ, इफ दे आर डूइंग मच बुक डिस्ट्रीब्यूशन, या दे आर ब्रिंगिंग, मेन थिंग इज दे आर ब्रिंगिंग सो मच डोनेशंस, तो उनको ज़्यादा सराहना करते थे, बाकी भक्तों की अवहेलना करते थे. तो महाराज ही वांटेड टू प्लीज द प्रीचर्स कि इट इज़ नॉट द व्हाट प्रभुपाद. प्रभुपाद बहुत ज़्यादा मंदिर या बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डोनेशन नहीं चाहते थे. प्रभुपाद बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं बनाने चाहते थे. प्रभुपाद वांटेड टू मेक सो मेनी प्योर डिवोटीज. बहुत शुद्ध भक्त बनाना चाहते थे. बहुत ज़्यादा मंदिर, बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम, प्रभुपाद मंदिर बनाने का ड्रीम था. प्रभुपाद का मंदिर बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, ही वांटेड टू मेक शुद्ध भक्त, वो प्योर डिवोटीज बनाना चाहते थे. तो महाराज को दुख होता है जब कहीं भी लोग जीबीसी पर, लोग प्रीचर्स पर, लोग इस्कॉन पर, लोग प्रेसिडेंट पर, लोग सीनियर्स पर उंगली उठाते हैं. तो महाराज को बहुत दुख होता था कि अरे ऐसे कैसा हो रहा है, प्रभुपाद की बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपसे नहीं फॉलो हो रहे, इसलिए लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं. महाराज को देखकर बहुत दुख होता था. आई थिंक हमने पहले किस चैप्टर में तो नहीं पढ़ा था ये. आई थिंक प्रभुपाद की लेगेसी में ये नहीं पढ़ा था शायद ये. अगम प्रभु, ये रिमेम्बर प्रभु. ये रहा. There are 3 things that is very important to me. One is that I want to preach the preachers. It causes me so much pain to see devotees falling down and going away. The second thing is that I want to show how everything is in Prabhupada's books.
The person who's saying that Srila Prabhupada only gave ABCD, it causes me so much pain in my heart. I want to make them silent. And the third thing is that I want to show how everything is in ISKCON, and the devotees do not go elsewhere for the higher teachings. Like around within a month, I have seen more than 5 to 6 devotees have left the ISKCON. सिर्फ एक महीने में। ये तो जिनको मैं जान रहा हूँ, जिन जो हमसे जानकार में हैं, जो हमारे टच में है, न जाने ऐसे कितने भक्तों ने छोड़ दिया होगा। एक तो अभी प्रोग्रेस में थे, स्वभाव भी हमने ट्राई किया कि वो रह ही जाए जाए ना। हमें एक चीज़ पता है, व्हाट आई रियलाइज्ड, सुनकर मुझे एक चीज़ तो मुझे पता है, अगर हम थोड़ी साधना कम करेंगे ना चलेगा, चलो थोड़ी देर के लिए माला कम हो गई हमसे, थोड़ा सा बुक इंस्ट्रक्शन मतलब ठीक है, साधना हम चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है, आई एम नॉट सेइंग ये प्रिंसिपल है, बट चलो एक एक पल को चलो हो गई हमसे थोड़ी बहुत साधना कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, लेकिन साधना कम हो गई चलेगा, लेकिन हमारा भाषा शैली, हमारा व्यवहार, आचार विचार प्रचार ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी भक्त नया जुड़ रहा है या कोई भी भक्त उसको बुरा लगे, उसको पीड़ा पहुंचा हमारी किसी भी बिहेवियर से। कोई भी भक्त, कनिष्ठ हो, मध्यम हो या सीनियर, तो सीनियर तो भाई अलग ही उनका लेवल है, कनिष्ठ मध्यम या उत्तम कोई भी हो, तीनों प्रकार के भक्त हैं। हमें किसी भी प्रकार के भक्त को, अरे वो तो भी नया भक्त ज्वाइन किया, उनसे ज़्यादा तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ टेम्पल में सेवा करता हूँ, मैं यहाँ सेवा करती हूँ, ऐसा कुछ भी है, तो उनको हम नेगलेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर जरा सा भी, क्योंकि बेसिकली छोड़ने का लोग छोड़ते क्यों हैं? या तो पहली बात वो तो अच्छे से पकड़े नहीं होते हैं, या तो इस कारण से छोड़ते हैं, या तो फिर बिहेवियर नहीं अच्छा है। तो जो पकड़े नहीं अच्छे से, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी कोई हमारे पास आए, वेन एवर समवन कम्स टू टेक आवर एसोसिएशन, टेक आवर गाइडेंस, पहली बात तो हाँ टेक आवर एसोसिएशन, कोई हमारे भक्त हमारे संग लेना चाहे, तो उसको हमें ऐसा नहीं फील, ऐसा ना लगे यस कि मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए हमारे व्यवहार से, हमारे प्रचार से, हमारे आचार से कि हाँ यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, आप मेरे लिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट हो, मुझे बहुत मायने रखते हो। हमें हमेशा उनके साथ प्रभु आपकी माला हुई थी, मैंने आज ये रीड किया, मैंने आज वो पढ़ा, ये ऐसा व्यवहार हमेशा होना चाहिए। डिस्कशंस, हेल्दी डिस्कशंस होते रहने चाहिए उनसे, उनको लगे ना कि नेगलेक्ट किया जा रहा है, अरे आई एम नॉट फीलिंग, मुझे यहाँ इंपॉर्टेंस दे रहा है। हमें उतना इंपॉर्टेंस उनको देना चाहिए जब भी कोई हमारे पास आए, तब एट सम एक्सटेंट वी कैन अवॉइड दिस की जो भक्ति छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरे साथ क्या था, आई वॉज नथिंग न्यू, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अपनी स्टोरी बताऊँ, मैं रैंडम टेलीग्राम पर गया, आई वॉज जस्ट सर्चिंग, मैं किस लिए टेलीग्राम पर गया, आई जॉइन टेलीग्राम जस्ट टू फाइंड सम मूवीज। मैं मूवीज देखने के चक्कर में, आई थिंक 4 to 5 years बैक, मूवीज के चक्कर में मैं टेलीग्राम पर गया, एंड देन समवन रैंडमली टेक्स्टेड मी। मैं किसी बस ऐसे एक डिवोशनल ग्रुप में था, तो वहाँ से किसी मैंने कुछ पोस्ट शेयर कर दी, जैसे आते हैं भगवान कहते हैं गीता में ये कहते हैं, सो आई शेयर दैट, एंड किसी भक्त ने मुझे वहाँ पर मैसेज किया, काम में ज्वाइन और बुक रीडिंग सेशन, बस इतना बोला कि आप बुक रीडिंग सेशन, एंड दे ट्रीटेड मी इन द सच वे दैट आई एम सिटिंग विथ यू ऑल। सो ऐसा आदान प्रदान हमारे साथ भक्तों के साथ होना चाहिए, देन वी कैन अवॉइड एट सम एक्सटेंट कि हाँ छोड़कर ना जाएं। आप एक चीज़, अगर कुछ भी आपको टेक बैक लेसन यहाँ से आज के सेशन से लेना है, तो प्लीज़ एक चीज़ आप रिमेंबर रखना, एक चीज़ आप ये लेसन जरूर लेकर जाना, कि हु एवर कैन कम इन योर कॉन्टैक्ट, कोई वक्त आपके कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसको ऐसा ना लगे कि हाँ नेगलेक्ट किया जा रहा है, योर मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए उतना, उसको इंपॉर्टेंस देनी है। वेरी गुड। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं।